Good morning, student of class 3. How are you? I hope you all are fit and healthy. So, student, welcome back to your previous class. Today date is 21 September 2021 and I am teaching you chapter number 12, locating places. So, let's do little recapitulation what we have done in the previous video. So, in the previous video, student, I explained you what do you mean by neighbors and what are the neighborhood services which are present in our neighborhood and due to which our life become easier and comfortable. Okay, so when you step, okay, once we step out from our home, then it means where we are in our neighborhood. Okay, and what are the neighborhood services which make our life easier and comfortable? That is market, school, hospital, park, police station, post office, bank. So these are the neighborhood services which make our life easier and comfortable. So locating places is the name of the chapter. So with many example I have explained you that if you, for example, maximum students you are belonging to army family and after every 2 or 3 years your father transfer. So for example, if you go to some new city, so how you will locate the different places in your neighborhood? So one method is that is by the help of the sketch. Okay, for example, if you want to go or you want to locate some places in your neighborhood, so with the help of a sketch also you can find out the neighborhood places, because sketch is a rough drawing of a place. स्केच क्या है बेटा? किसी भी प्लेस की जो रफ ड्राइंग होती है बेटा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्केच बोलते हैं. ठीक है, रफ ड्राइंग ऑफ ए प्लेस इज नोन एज ए स्केच. ओके, एंड इट यूजेस साइन एंड सिंबल्स इंस्टेड ऑफ पिक्चर्स. तो बेटा स्केच से भी हम लोग डिफरेंट नेबरहुड प्लेसेस की लोकेशन का पता लगा सकते हैं. ठीक है, बट एग्जैक्ट अगर आप चाहते हो कि आपको एग्जैक्ट प्लेस और विद मेजरमेंट अगर आपको पता लगाना है कि व्हाट इज द किसी भी प्लेस का एग्जैक्ट मेजरमेंट, if you want to know the exact measurement of any place, then this we can do with the help of a map. Okay, this we can do with the help of a map, because sketch does not show the exact measurement. ठीक है, स्केच क्या होता है बेटा? एक रफ ड्राइंग होती है किसी भी प्लेस की. ठीक है, और जो आपका ये आ जाएगा, जो अगर आपको किसी भी प्लेस का एग्जैक्ट मेजरमेंट के संग पता लगानी है उस प्लेस की क्या लोकेशन है, तो दिस कैन ओनली बी पॉसिबल विद द मैप. ठीक है, तो ये यहाँ तक थोड़ी बहुत चीजें हमने कल डिस्कस की थी. सो टू गेट एन एग्जैक्ट साइज एंड लोकेशन, टू get exact size
to get exact size and location. Is it clear? To get exact size and location, we use maps. Okay, we use map. और मैप आप किसी भी चीज का बना सकते हो, ठीक है। ए मैप इज द ड्राइंग ऑफ ए नेबरहुड, सिटी और कंट्री। मैप जो है मैप अगर आपसे कोई पूछता है कि मैप आप किसके लिए ड्रॉ कर सकते हो, तो मैप कैन बी ड्रॉन, ओके। सो ए मैप इज द drawing map is the drawing of a place लिखो, ऐसे बेटर जो है, मैप इज द ड्राइंग ऑफ ए नेबरहुड प्लेस भी हो सकती है, मैप इज द ड्राइंग ऑफ ए नेबरहुड, सिटी और कंट्री। Another important point about the map is it is drawn with exact measurement। मैप से आपको, मान लीजिए आपको वाराणसी से इलाहाबाद जाना है, तो विद द हेल्प ऑफ ए मैप आपको एग्जैक्ट मेजरमेंट बता देगा कि व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ वाराणसी टू इलाहाबाद। सो व्हाट इज द डिस्टेंस, हाउ मच किलोमीटर यू हैव टू ट्रेवल, दैट एग्जैक्ट मेजरमेंट इज गिवन बाय द मैप। Sketch is the only rough drawing of a place. It does not give you the exact measurement. So exact measurement, if you want to know, then you will use the map. It is drawn with exact measurement. Okay. And a map which show a smaller area such as room or house, इसको हम लोग क्या कहेंगे, प्लान। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लान। ओके, सो a map that shows a smaller area such as a room or a house, is called it a प्लान। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, प्लान बोलेंगे। ठीक है, सो नाउ सी, let recapitulate the things about the map। To get exact size and location, what we use maps। ठीक है, what is the exact size of, to exact size and location we use a map। so और मैप आप किस प्लेसेस का मैप बना सकते हो बेटा,
तो मैप आपका नेबरहुड प्लेसेस पे भी बन सकता है, सिटीज का भी और पूरी कंट्री का भी बन सकता है, ठीक है, होल कंट्री का भी मैप बन सकता है। आपने एटलस की बुक में देखा होगा, इंडिया का भी पूरा मैप होगा, वहाँ वर्ल्ड मैप भी होगा और भी अलग अलग थीम्स पे मैप होते हैं, ठीक है। सो ए मैप इज द ड्राइंग ऑफ ए नेबरहुड भी हो सकती है, सिटी भी हो सकती है, कंट्री भी हो सकता है, वर्ल्ड मैप भी हो सकता है, ठीक है। एंड व्हाट इज द सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट द मैप इज दैट it is drawn with exact measurement. For example, from Varanasi to Delhi you want to go, so with the help of a map you will get the exact measurement of that place. It will tell you how much distance you have to cover if you are moving from Varanasi to Delhi. So exact, that is the reason the second point is very important. It is drawn with the exact measurement. Okay, next is a map that show a smaller area such as room or a house. हाउस या रूम के लिए जो बनाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लान बनाते हैं, दैट इज ए प्लान। जैसे आज के टाइम में जब भी हम लोग हाउस बनाते हैं तो हम लोग हाउस का नक्शा बनवाते हैं, ठीक है, तो वो किससे बनवाते हैं, आर्किटेक्चर से बनवाते हैं, हाउस का नक्शा बनवाते हैं और उसी प्लान के अकॉर्डिंग फिर बिल्डर क्या करता है, उस हाउस को बिल्ड करता है। इज इट क्लियर? पहले हम उस हाउस का नक्शा बनाते हैं, एक मैप बनवाते हैं, एक प्लान बनवाते हैं और उसी प्लान के अकॉर्डिंग बिल्डर मीन्स द पर्सन जो कंस्ट्रक्शन का काम कराता है, फिर बिल्डर जो है उसी प्लान के बेस पे ही बिल्डिंग को, उस आपके हाउस को क्या कराएगा, उसकी कंस्ट्रक्शन कराएगा, ठीक है। अब देखो ये हो गया मैप का सब बता दिया आपको। मैप इज द ड्राइंग ऑफ ए नेबरहुड भी हो सकती है, सिटी, कंट्री और वर्ल्ड मैप भी हो सकता है। इट इज ड्रॉन विद एग्जैक्ट मेजरमेंट, ठीक है। मैप आपको एग्जैक्ट मेजरमेंट बता देता है कि आपको कहीं जाना है तो कितना डिस्टेंस आपको कवर करना होगा। सो ऑल दैट थिंग्स इज एक्सप्लेन टू यू विद द हेल्प ऑफ ए मैप। अब एग्जैक्ट मेजरमेंट की बात कर रहे हैं तो इसमें मैं अभी एक्सप्लेन करता हूं आपको। ठीक है, अब देखो बुक में आपके नहीं दिया है लेकिन आपके नॉलेज के लिए बता देता हूं कि देयर आर 3 काइंड्स ऑफ मैप, 3 काइंड्स ऑफ मैप। ठीक है, देखो अभी आपकी बुक में नहीं दिया है लेकिन आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको समझा देता हूं बेटा यहाँ पे कि वी हैव 3 काइंड्स ऑफ मैप। एक को हम लोग बोलेंगे फिजिकल मैप, फिजिकल मैप व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स मैंने अर्थ वाला चैप्टर आप लोग को पढ़ाया था तो मैंने आप लोग को बताई थी ना एक चीज कि क्या अर्थ के सरफेस पे all the places of the surface of the earth having same type of land? तो आंसर क्या था? नो। अर्थ के सरफेस पे कहीं पे आपको लैंड कैसा मिलेगा? प्लेन। समवेयर यू विल सी हिल्स, समवेयर यू विल सी माउंटेन्स, ओके, समवेयर यू विल सी desert, somewhere you will see valley, somewhere you will see the surface of the earth having a plateaus, okay, somewhere you will see water bodies, water body means I am talking about the ponds, sea, river, oceans. So these are the water bodies on the surface of the earth. तो जब हम फिजिकल मैप होता है जो ये बताता है कंट्री के कौन से पार्ट्स प्लेन है, कहाँ पे हिल्स है, कहाँ माउंटेन है, कौन पार्ट डेजर्ट है, जैसे राजस्थान
डेजर्ट एरिया है ना, कहाँ पे वैलीज हैं, ये आपको माउंटेन रेंज में मिलेगा। ठीक है, वैलीज जो दो पहाड़ों के बीच में जो कुछ प्लेन पार्ट होता है उसी को क्या बोलते हैं, वैलीज बोलते हैं। ठीक है, दो बड़े माउंटेन है उनके बीच में जो थोड़ा प्लेन पार्ट जो होगा पहाड़ों के बीच में, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वैलीज बोलते हैं। ठीक है, प्लेट्यूज ये जमीन से तो ऊंचा होता है, जमीन से ये ऊंचा होगा, लेकिन ये पहाड़ों की तरह इसमें ऐसे पहाड़ बनते हैं ना, ये पहाड़ों की तरह इसकी पीक नहीं बनेगी, जो ऊपर से प्लेन होता है। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेट्यूज। प्लेट्यूज बोलते हैं इसको। ठीक है, ऊपर से क्या होगा, ये ऊपर से बिल्कुल प्लेन होगा। इसको टेबल लैंड भी बोल सकते हो, क्योंकि आपका टेबल क्या होता है, उसके 4 लेग्स होते हैं और ऊपर से वो भी क्या होता है, प्लेन होता है। तो दैट इज द रीजन आप इसको टेबल लैंड भी बोल सकते हैं। इज इट क्लियर? सो वाटर बॉडीज मैंने बता ही दिया। तो देखो मैप क्या है, 3 काइंड्स ऑफ मैप है। फिजिकल मैप ये शो करता है कि कैसा एरिया है। तो इंडिया के अगर आप लोग नॉर्थ में चले जाओ, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, ये सब हिल स्टेशंस हैं। ये सब क्या है बेटा, दीज ऑल आर हिल स्टेशन। ये सारे के सारे कैसे हैं, हिल स्टेशन हैं। ठीक है, अब जैसे हम लोग वाराणसी में रहते हैं, ये कैसा एरिया, नॉर्दर्न प्लेन्स है, यहाँ के लैंड कैसा है, फ्लैट है। ठीक है, राजस्थान चले जाओगे तो डेजर्ट एरिया मिल जाएगा। तो इसी तरह वैलीज आपको हिमाचल में मिलेंगी, जो हिमाचल रेंज है वहाँ पे आपको वैलीज मिल जाएंगी। ठीक है, और प्लेट्यूज है और वाटर बॉडीज है। तो इस तरह जो हमारे जो जिस मैप से ये पता चलता है कि कैसा फिजिकल डिवीजन है वहाँ, मतलब वहाँ माउंटेन है कि हिल है कि प्लेन है कि वैलीज है, प्लेट्यूज है, तो ऐसे मैप को क्या बोलते हैं हम लोग, फिजिकल मैप बोलते हैं। ठीक है, सो सच टाइप ऑफ ए मैप को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, हम बोलेंगे इसको फिजिकल मैप बोलेंगे। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सेकेंड है पॉलिटिकल, POLITICAL, पॉलिटिकल मैप। आपको पता है बेटा हमारे देश की 28 स्टेट्स है और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। तो पॉलिटिकल मैप से आपको ये पता चलेगा कि हमारे कंट्री में कौन स्टेट कहाँ है। ठीक है, जैसे मैप का जो स्टार्टिंग ये वाला क्वेश्चन जो ऐसे करके स्टार्ट होता है ऊपर से, तो यहाँ क्या है, जम्मू कश्मीर आता है इस पार्ट में। ठीक है, जम्मू कश्मीर इस पार्ट में आएगा, फिर उसके नीचे आपका आएगा हिमाचल, फिर इधर आपका आ जाएगा उत्तराखंड। तो आपका पॉलिटिकल मैप ये बताता है कि कौन स्टेट इंडिया के किस पार्ट में है। ठीक है, विच स्टेट इज प्रेजेंट इन विच पार्ट ऑफ द कंट्री। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलिटिकल मैप। और एक थर्ड किस्म का मैप होता है जिसको हम लोग बोलते हैं थीमेटिक मैप। थीमेटिक मैप का मतलब होता है ये थीम बेस होता है। ये थीम बेस होता है, कोई भी थीम पे आप बना सकते हो। जैसे पॉपुलेशन को ले लो, इंडिया की 28 स्टेट्स की पॉपुलेशन क्या है, तो 28 स्टेट्स का नाम होगा और उनकी पॉपुलेशन होगी। तो थीमेटिक मतलब होता है कोई भी थीम हम ले सकते हैं, जैसे पॉपुलेशन ले लिए थीम। ठीक है, या तो हम क्रॉप्स का भी ले सकते हैं। ठीक है, रेलवेज का, इंडिया के किस किस पार्ट में इंडियन रेलवे है, इंडिया के किस पार्ट में टी प्लांटेशन होता है, इंडिया के किस पार्ट में सबसे ज्यादा व्हीट और राइस प्रोड्यूस होता है। तो थीमेटिक मैप का मतलब तब होता है कोई भी थीम को लेके जो हम मैप बनाएंगे वो हो जाएगा आपका थीमेटिक मैप। ठीक है, चाहे तो आप पॉपुलेशन थीम ले लो कि इंडिया के डिफरेंट स्टेट्स की क्या पॉपुलेशन है। ठीक है, आप रेन पे भी बना सकते हो मैप, इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री मैक्सिमम रेन कहाँ होती है, तो रेन के बेस पे भी हो गया, क्रॉप्स के बेस पे भी हो गया। ठीक है, आप इंडियन रेलवेज के ऊपर भी मैप बना सकते हो कि इंडियन रेलवेज इज इन विच पार्ट ऑफ द कंट्री, कंट्री के किस किस पार्ट में क्या है बेटा इंडियन रेलवे। तो थीमेटिक मैप
कोई भी थीम को लेके आप बना सकते हो, तो इसी को क्या बोलते हैं, थीमेटिक मैप। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।